Friends, today I am discussing about the most important chapter of science class 9th, from which minimum 2 to 3 questions are asked in every exam. So it is most important. So let's start without wasting of time. Chapter number is 10. Chapter name is work and energy. In the previous few chapters we have talked about way of describing the motion of object, the cause of motion and gravitation. Another concept that helps understand and interpret many natural phenomena is work, closely related to other work and energy and power. In this chapter we shall study these concepts. All living beings need food. Living beings have to perform several basic activities to survive. We call such activities life process. Okay. The energy for this process comes from food. We need energy for other activities like playing, singing, reading, writing, thinking, jumping, cycling, and running. Activities that are strenuous require more energy. Animals to get engaged in activities, for example, they may jump and run. Yes. They have to fight, move away from enemies, find food, or find a safe place to live. Also, we engage some animals to lift weight, carry loads, pull carts, or plow fields. All such activities require energy. Think of machines. List the machines that you have come across. What do they need for their working? Why do some engines require fuel like petrol and diesel? Why do living beings and machines need energy? यहाँ पे बेसिकली यही बताया गया है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग बीइंग है, सभी को नीड होती है फूड की. सभी एनिमल्स को कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए, दौड़ने के लिए, भागने के लिए, किसी एनिमी से बचने, एनिमी एनिमल से बचने के लिए सभी को फूड की आवश्यकता होती है. बहुत सारे एनिमल जो भी होते हैं उसको सेफ प्लेस पे लाइव करने के लिए उसको एनर्जी की आवश्यकता होती है. बहुत सारे एनिमल्स जो लिफ्ट करते हैं वेट, कैरी लोड करते हैं, पुल कार्ट खींचते हैं, मतलब कार्ट जो गाड़ी होती है उसको खींचते हैं, प्लो फील्ड मतलब फील्ड को जुताई जो करते हैं, सभी जितने सारी एक्टिविटीज़ है सभी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि सोचिए, थिंक मशीन्स. लिस्ट द मशीन्स दैट यू हैव कम अक्रॉस. व्हाट डू दे नीड देयर वर्किंग? व्हाई डू सम इंजिन्स रिक्वायर फ्यूल लाइक पेट्रोल, डीजल? व्हाई डू लिविंग बींग्स एंड मशीन्स नीड एनर्जी? यहाँ पे यह बताया गया है कि जैसे लिविंग बीइंग को एनर्जी की आवश्यकता होती है, वो फूड लेते हैं, क्या मशीन जो भी है उसको भी एनर्जी की आवश्यकता होती है? वो पेट्रोल लेते हैं, डीजल लेते हैं, ये पूछा गया है. तो इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं. ओके, नो वी विल डिस्कस अबाउट वर्क. व्हाट इज वर्क? वर्क क्या है? देयर इज अ डिफरेंस इन द वे वी यूज द टर्म वर्क इन डे टू डे लाइफ एंड द वे वी यूज इट
in science. To make this point clear, let us consider few examples. कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि वर्क क्या होता है। डे टू डे लाइफ में जो चलता है उसको और साइंस क्या कहता है, उसमें जो डे टू डे लाइफ में देखते हैं समझते हैं और साइंस के टर्म्स में क्या वर्क और जिसको मनुष्य समझता है और जो साइंटिस्ट समझता है, मतलब डे टू डे लाइफ में जो चलता है और जो साइंटिस्ट कहते हैं क्या दोनों में डिफरेंस है, तो इसके बारे में समझते हैं। नॉट मच वर्क इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। ओके, Kamali is preparing for examination. She spends lot of times in study. She read books, draw diagrams, organizes her thoughts, collect question papers, attends classes, discuss problem with her friends, and perform experiments. She expends a lot of energy on these activities. In common parlance, she is working hard. All this hard work may involve very little work. If we go by the scientific definition of work, you are working hard to push a huge rock. Let us say the rock does not move despite all the effort. You get completely exhausted. However, you have not done any work on the rock, as there is no displacement of the rock. यहाँ पे बताया गया है कि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग यदि आप बहुत बड़ा रॉक को, मान लीजिए पहाड़ को, यदि आप उसको पुश करते हैं, धक्का देते हैं, यदि वह उसमें मूवमेंट नहीं हुआ, मूव नहीं किया, एक जगह से दूसरे जगह नहीं हटा, तो उसको जो है ना वर्क में कंसीडर नहीं करेंगे। आपका एनर्जी लॉस हुआ बट इसको हम वर्क में कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे ये बच्ची बहुत सारी बुक पढ़ती है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, उसको एनर्जी लगा, रिक्वायरमेंट हुई और एनर्जी लगा, बहुत सारे मेहनत की वो, लेकिन फिजिकली वर्क भी किया और मेंटली वर्क भी की, बट उसका आउटपुट यदि वो नहीं दिखा कि सामने कि यदि एक जगह से अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग यदि किसी भी चीज़ में, किसी भी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट हो रहा है, फिर उसके बाद ही हम उसको वर्क कह सकते हैं। गॉट इट? You stand still for a few minutes with a heavy load on your head. You get tired. You have exerted yourself and have spent quite a bit of your energy. Are you doing work on the load? The way we understand the term work in science, work is not done. अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू साइंस, यदि आप अपने सर पे, हेड पे, माथा पे बहुत सारे सामान को यदि कैरी कर रखे हो, लोड कर रखे हो, यदि आप कुछ मिनट तक एक ही जगह खड़ा हो, कैरी कर रखे हो, कैरी क्या हुआ है, रखा हुआ है, यदि वह एक जगह ही हो, आप स्टैंड हो, खड़े हो, तो अकॉर्डिंग टू साइंस वर्क इज नॉट डन, मतलब कार्य नहीं हुआ है। गॉट इट? यू क्लाइंब अप द स्टेप्स ऑफ अ स्टेयर केस एंड रीच द सेकेंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग जस्ट टू सी द लैंडस्केप फ्रॉम देयर. You may even climb up a tall tree. If we apply the scientific definition, these activities involve a lot of work. यहाँ पे बताया गया है कि
आप स्टेयर्स से, सीढ़ी से आप सेकेंड फ्लोर पे चढ़ते हो अपने छत पे, बिल्डिंग पे। और सी द लैंडस्केप फ्रॉम देयर, ओके, यू मे इवन क्लाइम अप ऑल टॉल ट्री। आप किसी टॉल ट्री पे जो लंबा पौधा है उस पर चढ़ते हो। इफ़ वी अप्लाई द साइंटिफिक डिफिनेशन, यदि यहाँ पे साइंटिफिक डिफिनेशन कहा जाए तो यहाँ पे एक्टिविटीज़, इस एक्टिविटीज़ में वर्क डन हुआ है, मतलब वर्क हुआ है, कार्य हुआ है। इन डे टू डे लाइफ वी कंसिडर एनी यूजफुल फिजिकल और मेंटल लेबर एज वर्क एक्टिविटीज लाइक प्लेइंग इन अ फील्ड, टॉकिंग विद फ्रेंड्स, ह्यूमिंग अ ट्यून, watching a movie, attending a function are some times not considered to be work। यदि आप मूवी देख रहे हो, टॉकिंग विद फ्रेंड्स, दोस्त से बात कर रहे हो, एक्टिविटीज लाइक प्लेइंग इन फील्ड, फील्ड पे जो एक्टिविटी हो रही है, खेल रहे हो, लाइक प्लेइंग इन अ फील्ड। व्हाट कंस्टिट्यूट्स वर्क डिपेंड ऑन, समटाइम्स बहुत सारे एक्टिविटी जो होता है, यदि आप सिर्फ और सिर्फ देख रहे हो, उसमें फिजिकली वर्क नहीं कर रहे हो, तो उसको वर्क में कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है, व्हाट कंस्टिट्यूट्स वर्क डिपेंड्स ऑन द वे वी डिफाइन इट, वी यूज एंड डिफाइन द टर्म वर्क डिफरेंटली इन साइंस। साइंस की भाषा में वर्क को अलग तरह से बताया गया है, समझाया गया है। टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस द फॉलोइंग एक्टिविटीज। साइंस की भाषा में यदि वर्क के बारे में समझना है कि वर्क की क्या डिफिनेशन है, वर्क क्या है, तो कुछ एक्टिविटीज के माध्यम से यहाँ पे देखते हैं। एक्टिविटीज 10.1, we have discussed in the above paragraph a number of activities which we normally consider to be work in day-to-day life. For each of these activities, ask the following questions and answer them. First, what is the work being done on? What is happening to the object? What is doing the work? No, we will discuss about scientific concept of work. Okay. To understand the way we view work and define work from the point of view of science, let us consider some situation. Push a pebble lying on a surface. The pebble moves through a distance. You exerted a force on the pebble and the pebble got displaced. In this situation, work is done. Got it? कहने का मतलब कि यदि मूवमेंट होगा, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट हुआ कुछ, फिर उसके बाद ही हम उसको वर्क कहेंगे। गॉट इट? अ गर्ल पुल्स अ ट्रॉली and the trolley moves through a distance. The girl has exerted a force on the trolley and it displaced, therefore work is done. यदि कोई लड़की किसी ट्रॉली को पुल कर रही है और ट्रॉली मूव हुआ है कुछ डिस्टेंस, कुछ दूरी, थ्रू गर्ल के द्वारा, द गर्ल्स हैज एक्सर्टेड अ फोर्स ऑन द ट्रॉली, गर्ल्स ने फोर्स किया ट्रॉली पे, एंड इट डिस्प्लेस्ड, यदि डिस्प्लेस्ड हुआ ट्रॉली तो इसको देयरफॉर वर्क इज डन, इसलिए इसको क्या कहेंगे, वर्क हुआ है। गॉट इट? लिफ्ट अ बुक थ्रू अ हाइट. टू डू दिस यू मस्ट अप्लाई अ फोर्स. द बुक rises up. There is a force applied on the book and
द बुक हैज मूव्ड हैंस वर्क इज डन। यदि आप बुक को एक जगह से दूसरे जगह रख देते हो, उस पर आप थोड़ा सा फोर्स लगाते हो, यदि बुक मूव किया है तो हम कहेंगे कि वर्क डन हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट, अ क्लोजर लुक एट द अबव सिचुएशन रिवील्स दैट टू कंडीशंस नीड टू बी सेटिस्फाइड फॉर वर्क टू बी डन। फर्स्ट, अ फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लग रहा है। सेकेंड, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, और वह ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड मतलब एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, तो हम कहेंगे कि वर्क इज डन, मतलब वर्क हुआ है। मतलब वर्क होने के लिए दो चीज़ होना चाहिए। फर्स्ट फॉरमोस्ट, फोर्स शुड बी एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, मतलब उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगना चाहिए। और दूसरा, डिस्प्लेस्ड ऑब्जेक्ट मस्ट, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस्ड एक जगह से दूसरे जगह जाना चाहिए। गॉट इट? इफ एनी वन ऑफ द अबव कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट, वर्क इज नॉट डन। दिस इज द वे वी व्यू वर्क इन साइंस। इस तरह से हम साइंस में वर्क को देखते हैं। A block is pulling a cart. The cart moves. There is a force on the cart and the cart has moved. Do you think that work is done in this situation? यहाँ पे बताया गया है, बुल जो होता है, a block is pulling a cart. यदि कोई बुल किसी कार्ट को पुल करता है और कार्ट एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहा है, तो क्या इस सिचुएशन को हम वर्क कहेंगे? इस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे एक्टिविटी देखते हैं। ओके, एक्टिविटी, थिंक ऑफ सम सिचुएशन फ्रॉम योर डेली लाइफ इन्वॉल्विंग वर्क, लिस्ट दैम, discuss with your friends whether work is being done in each situation. Try to reason out your response. Next, if work is done, which is the force acting on the object? What is the object on which the work is done? What happens to the object on which work is done? इस एक्टिविटी को कहते हैं आप अपनी डेली लाइफ में अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और जान सकते हैं, समझ सकते हैं। गॉट इट? हेयर एक्टिविटी, थिंक ऑफ सिचुएशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नॉट डिस्प्लेस्ड इन स्पाइट ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। मान लीजिए, एक सोचिए कि यदि कोई ऐसा सिचुएशन है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं हुआ, एक जगह से दूसरे जगह नहीं गया, और आपने फोर्स लगाया है, तो क्या इसको वर्क कहेंगे? ऑल्सो थिंक ऑफ सिचुएशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट गेट्स डिस्प्लेस्ड इन द एब्सेंस ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। और ऐसा आप ये भी सोचिए कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड हुआ है, आप उसमें फोर्स नहीं लगाए हो, तो क्या यह वर्क कहलाएगा? लिस्ट ऑल द सिचुएशन दैट यू कैन थिंक ऑफ फॉर ईच, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स वेदर वर्क इज डन दिस सिचुएशन। गॉट इट? नेक्स्ट, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, work done by a constant force. How is work defined in science? To understand this, we shall first consider the case when the force is acting in the direction of displacement. Let a constant force F act on an object
let the object be displaced through a distance s in the direction of the force. Figure 10.1. Let W be the work done. We define work to be equal to the product of force and displacement. वर्क डन बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को ही हम वर्क डन कहेंगे. यदि किसी भी चीज़ में फोर्स के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी मल्टीपल हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? वर्क डन कहेंगे. गॉट इट? Thus, work done by a force acting on an object is equal to the magnitude of the force multiplied by the distance moved in the direction of the force. Work has only magnitude and no direction. वर्क में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है. मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है. इन इक्वेशन 10.1 F equal to 1 Newton and S equal to 1 meter, then the work done by the force will be 1 Newton meter. Here, the unit of work is Newton meter or joule. Thus, 1 joule is the amount of work done on an object when a force of 1 Newton displaces it by 1 meter along the line of action of the force. Look at equation 10.1 carefully. What is the work done when the force on the object is 0? What would be the work done when the displacement of the object is 0? Refer to the conditions that are to be satisfied to say that work is done. Got it? Here is example. (10.1) A force of 5 Newton is acting on an object. The object is displaced through 2 meters in the direction of the force. If the force acts on the object all through the displacement, then work done is 5 Newton into 2 मीटर इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर या 10 जूल कह सकते हैं. गॉट इट? नेक्स्ट, कंसिडर अनदर सिचुएशन in which the force and the displacement are in the same direction. A baby pulling a toy car parallel to the ground as shown in figure 10.4. The baby has exerted a force in the direction of the displacement of the car. In this situation, the work done will be equal to the product of the force and displacement. In such situation, the work done by the force is taken as positive. Consider a situation in which an object is moving with a uniform velocity along a particular direction. Now a retarding force F is applied in the opposite direction. That is, the angle between the two directions is 180 degree. Let the object stops after a displacement S. In such a situation, the work done by the force F is taken as a negative and denoted by the minus sign. The work done by the force is F into minus S or minus F into S. It is clear from the above discussion that the work done by a force can be either positive or negative. Okay. To understand this, let us do the following activities. Activity: lift an object up
work is done by the force exerted by you on the object. The object moves upwards. The force you exerted is in the direction of displacement. However, there is the force of gravity acting on the object. Next, which one of these forces is doing positive work? Next, which one is doing negative work? Give reason. Okay. Work done is negative when the force acts opposite to the direction of the displacement. यदि कोई भी वर्क में फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो वहां पे जो होगा वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा. वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. यदि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही फोर्स लग रहा है तो वहां पे वर्क डन जो होगा पॉजिटिव होगा. गॉट इट? हियर इज एग्जांपल 10.2. A porter lifts a luggage of 15 kg from the ground and puts it on his head 1.5 meter above the ground. Calculate the work done by him on the luggage. Solution: mass of luggage m equal to 15 kg and displacement s equal to 1.5. Work done w equal to f into s बराबर f की जगह हो जाएगा mg इंटू एस. तो mg इक्वल टू 15 kg दिया हुआ है इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये हो गया ग्रेविटेशन. क्योंकि जनरली स्मॉल g का वैल्यू 9.8 होता है, लेकिन 10 कंसीडर करते हैं कैलकुलेशन ईजी होने के कारण. एंड s डिस्टेंस हो गया 1.5 मीटर. तो यदि इसको कैलकुलेट करेंगे तो 225 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीटर हो जाएगा. तो इसको हम 225 न्यूटन मीटर या 225 जूल कह सकते हैं. तो यहाँ पे वर्क डन जो हुआ कितना हुआ? 225 जूल. नेक्स्ट, नो वी विल डिस्कस अबाउट एनर्जी. व्हाट इज एनर्जी? Life is impossible without energy. The demand for energy is ever increasing. Where do we get energy from? The sun is the biggest natural source of energy. सन जो होता है बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी का होता है. Many of our energy sources are derived from the sun. We can also get energy from nuclei of atoms, the interior of the earth, and the tides. Can you think of other sources of energy? Activity. A few sources of energy are listed above. There are many other sources of energy. List them. Discuss in small groups how certain sources of energy are due to the sun. Are there sources of energy which are not due to the sun? The word energy is very often used in our daily life, but in science we give it a definite and precise meaning. Let us consider the following examples. When a fast-moving cricket ball hits a stationary wicket, the wicket is thrown away. Similarly, an object when raised to a certain height gets the capability to do work. You must have seen that when a आपने जब क्रिकेट खेला होगा तो आपने देखा होगा कि जब बॉलर या कोई भी फील्डर डायरेक्ट हिट करता है विकेट में, तो विकेट कभी कभी क्या होता है
वो अपनी जगह पे से उखड़ के मतलब हट के दूसरे जगह चला जाता है। तो यहाँ पे क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे वर्क हुआ है, इसके बारे में समझना है। सिमिलरली यदि आप कभी छत वगैरह पे चढ़ते हो, ऊपर से यदि बॉल वगैरह को फेंकते हो या नीचे गिराते हो, तो क्या हम कह सकते हैं यहाँ पे वर्क हुआ है, यहाँ पे एनर्जी लगी है? तो इसको आगे समझते हैं। रेज्ड हैमर फॉल्स ऑन अ नेल placed on a piece of wood. It drives the nail into the wood. We have also observed children wending a toy, such as a toy car, and when the toy is placed on the floor, it starts moving. When a balloon is filled with air and we press it, we notice a change in its shape. As long as we press it gently, it can come back to its original shape. When the force is withdrawn, however, if we press the balloon hard, it can even explode, producing a blasting sound. In all these examples, the objects acquired through different means the capability of doing work. An object having a capability to do work is said to possess energy. The object which does the work loses energy, and the object on which the work is done gains energy. यदि कोई बॉलर या कोई भी फील्डर यदि उसने बॉल को फेंका और विकेट में लगा और विकेट एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो गया, तो बॉलर सिर्फ और सिर्फ क्या किया, बॉल फेंका, उसका एनर्जी जो लगा ठीक है। फिर उसके बाद बॉल के थ्रू जो वो विकेट का डिस्प्लेस्ड हुआ और विकेट में फोर्स लगा, इस तरह की एनर्जी को हम क्या कहेंगे, पोसेस एनर्जी। गॉट इट? समझ रहे हो आप? यदि आप छत पे चढ़ते हो और छत से नीचे बॉल को गिराते हो, तो यदि वहाँ पे बॉल को आप होल्ड कर रखे हो तो वहाँ पे क्या हुआ, पोसेस एनर्जी, मतलब कह सकते हो वहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी होता है, लेकिन यदि आप उसको गिराते हो और उसके बाद नीचे यदि कुछ जर्क टाइप से हो जाता है, कुछ होल टाइप से हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो इस तरह के जो कार्य हुआ है उसको हम पोसेस एनर्जी कहेंगे। यदि आप होल्ड करके रखे हो उसको क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। इसको आगे डिस्कस करेंगे। गॉट इट? हाउ डज एन ऑब्जेक्ट विद एनर्जी डू वर्क? An object that possesses energy can exert a force on another object. When this happens, energy is transferred from the former to the latter. The second object may move as it receives energy and therefore do some work. वही बात बताया गया है। विकेट में मारे, कोई फील्डर मारा या बॉलर मारा, फिर उसके बाद विकेट में जो मूवमेंट हुआ उसके द्वारा जो डिस्प्लेस्ड हुआ वो बॉल के द्वारा हुआ। मैंने बॉल को फेंका तो यहाँ पे मेरी एनर्जी गई, लेकिन बॉल जिससे हिट हुआ तो बॉल में मूवमेंट कम हो गया होगा, लेकिन वो क्या किया, किसको हिट किया, विकेट को किया, और विकेट क्या हुआ, मूव कर गया। समझ रहे हो ना? दिस इम्प्लाइज दैट एनी ऑब्जेक्ट दैट पोसेस एनर्जी कैन डू वर्क। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पोसेस एनर्जी वर्क किया है, और पोसेस एनर्जी जो है अदर वर्क को कर सकता है, एक अनदर वर्क।
मतलब एक एनर्जी से दो वर्क हो सकता है। द एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज दस मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ओके, द यूनिट ऑफ एनर्जी इज देयरफॉर द सेम एज दैट ऑफ वर्क, दैट इज जूल जे। 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। 1 जूल एनर्जी के लिए 1 जूल वर्क की आवश्यकता। 1 जूल वर्क के लिए 1 जूल एनर्जी की आवश्यकता होती है। एवरीथिंग ओके। समटाइम्स अ लार्जर यूनिट ऑफ एनर्जी कॉल्ड किलो जूल, के जे, स्मॉल के और कैपिटल जे, यहाँ पे ध्यान रखना है, इज यूज। 1 kg इक्वल टू 1000 जूल। यहाँ पे के स्मॉल होगा और जे जो होगा कैपिटल लेटर में होगा। गॉट इट? नो। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। Luckily, the world we live in provides energy in many different forms. The various forms include mechanical energy, potential energy plus kinetic energy. मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को ही मैकेनिकल, दोनों को यदि ऐड करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को यदि ऐड करेंगे तो मैकेनिकल एनर्जी फॉर्म्ड होगा। हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। ओके, इतने प्रकार के एनर्जी होते हैं, इतने प्रकार के फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। थिंक इट ओवर। हाउ डू यू नो दैट सम एंटिटी इज अ form of energy? Discuss with your friends and teachers. James Prescott Joule was an outstanding British physicist. He is best known for his research in electricity and thermodynamics. Amongst other things, he formulated a law for the heating effect of electric current. He also verified experimentally the law of conservation of energy and discovered the value of mechanical equivalent of heat. The unit of energy and work called joule is named after him. इस साइंटिस्ट का क्या नाम है? जेम्स पेरिस्कॉट जूल। इसका ड्यूरेशन क्या क्या चला? 1818 टू 1889, 1818 से 1889 तक। नो वी विल डिस्कस अबाउट काइनेटिक एनर्जी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा, एक्टिविटी। टेक अ हैवी बॉल, ड्रॉप इट ऑन अ थिक बेड ऑफ सैंड। अ वेट बेड ऑफ सैंड वुड बी बेटर ड्रॉप द बॉल on the sand bed from height of about 25 centimeter. The ball creates a depression. कहता है कि यहाँ पे बताया गया है कि 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, 25 सेंटीमीटर के हाइट पे एक बॉल को रखिए और उसको वहाँ से गिराइए। बेड ऑफ सैंड मतलब बालू के बेड पे उसको गिराना है बॉल को। द बॉल क्रिएट डिप्रेशन, बॉल क्या क्रिएट करेगा? डिप्रेशन क्रिएट करेगा वहाँ पे। रिपीट दिस एक्टिविटी फ्रॉम हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर। जो एक्टिविटी 25 सेंटीमीटर पे किए थे उसी को क्या करना है? 25 से 50 सेंटीमीटर कर देना है, मतलब 50 सेंटीमीटर के हाइट पे से उसको गिराना है। सिमिलरली जगह पे नहीं करना है, 1 मीटर 1.5 मीटर की डिस्टेंस पे जो है ना, डिस्टेंस पे करना है और इसको मार्क कर देना है कि कितने हाइट पे से गिराया गया है और डिस्टेंस को भी मेजर करना ध्यान रखना है। इंश्योर दैट ऑल डिप्रेशंस आर डिस्टिंक्टली विजिबल। ध्यान रखना है कि वो जो ऊपर से फॉल हो रहा है, गिर रहा है तो नीचे डिप्रेशन बन तो रहा है।
मार्क द डिप्रेशन टू इंडिकेट द हाइट फ्रॉम विच द बॉल वाज ड्रॉप्ड। कौन सा बॉल गिराया गया है ऊपर से और कितने हाइट पे से गिराया गया है, उस चीज़ को मार्क करना है और लिखना है। कंपेयर देयर डेप्थ, और जो नीचे डेप्थ हुआ है, गहरा हुआ है, उसको भी नोट करना है। विच वन ऑफ देम डीपेस्ट, सबसे ज़्यादा गहरा कौन हुआ है। विच वन इज स्लोवेस्ट, सबसे कम कौन हुआ है गहरा। व्हाट हैज कॉज्ड द बॉल टू मेक अ डीपर डेंट। गॉट इट। डिस्कस एंड एनालिसिस, इसको डिस्कस करना है, उसके बाद एनालाइज करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी, सेट अप द apparatus as shown in figure 10.5. Place a wooden block of known mass in front of the trolley at a convenient fixed distance. Place a known mass on the pan so that the trolley starts moving. Okay, here figure 10.5. The trolley moves forward and hits the wooden block. Next, fix a stop on the table in such a manner that the trolley stops after hitting the block. The block gets displaced. Note down the displacement of the block. This means work is done on the block by the trolley as the block has gained energy. From where does this energy come? Repeat this activity by increasing the mass on the pan, in which case is the displacement mode. In which case is the work done mode. In this activity, the moving trolley does work and hence it possesses energy. Okay. A moving object can do work. An object moving faster can do more work than an identical object moving relatively slow. यदि कोई भी ऑब्जेक्ट फास्ट है, तेज है, और कोई भी ऑब्जेक्ट यदि स्लो है, तो जो फास्ट है वो ज़्यादा मोर वर्क करेगा, जो स्लो है वो कम वर्क करेगा, रिलेटिवली स्लो, फास्टर के रिलेटिवली स्लो करेगा। ठीक। अ मूविंग बुलेट, ओके, ब्लोइंग विंड और रोटेटिंग व्हील और स्पीडिंग स्टोन कैन डू वर्क। एक मूविंग बुलेट, जो मूव कर रहा है बुलेट, गोली, ब्लोइंग विंड, जो तेज हवा, मतलब काफ़ी तेज यदि हवा चल रहा है वो भी वर्क करेगा। और रोटेटिंग व्हील, यदि कोई पहिया यदि रोटेट कर रहा है तो वो भी वर्क कर रहा है। और स्पीडिंग स्टोन, यदि कोई भी पत्थर को स्पीड से फेंका गया है तो वह भी वर्क कर सकता है। हाउ डज अ बुलेट पिट्स द टारगेट। हाउ डज द विंड मूव द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल। ऑब्जेक्ट्स इन मोशन पोसेस एनर्जी। यहाँ पे जो भी वर्क कर रहा है, ब्लोइंग विंड, मूविंग बुलेट और रोटेटिंग व्हील, सभी के पास क्या है, एक पोसेस एनर्जी है, जो कि दूसरा काम कर सकता है। जो उसको एनर्जी दिया गया वो तो काम कर ही रहा है, और जो काम कर रहा है उससे भी दूसरा काम हो सकता है। गॉट इट। मतलब एक एनर्जी मिला तो दूसरा काम हो रहा है, लेकिन वो दूसरा काम जो हो रहा है उससे भी एक काम हो रहा है। अ फॉलिंग कोकोनट, अ स्पीडिंग कार, अ रोलिंग स्टोन, अ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, फ्लोइंग वाटर, ब्लोइंग विंड, अ रनिंग एथलीट एक्सेट्रा possess kinetic energy. In short, kinetic energy is the energy possessed by an object due to its motion. Got it? The kinetic energy of an object increases with its speed. Okay. यहाँ पे बताया गया है जो पोसेस एनर्जी होता है
उससे भी जो एक प्रोसेस एनर्जी क्रिएट होता है, प्रोसेस एनर्जी से जो भी एनर्जी क्रिएट होता है, तो इस तरह के एनर्जी को ही हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जो प्रोसेस एनर्जी होगा, यदि हम किसी चीज़ को फेंके, यदि बॉल को फेंका कोई फील्डर या बॉलर और वह किसी चीज़ में लगा, मान लीजिए कि वह किसी वस्तु में जाके टकरा गया और उससे क्या हुआ, वह वस्तु भी मूव ऑन कर गया, तो इसमें क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी लगा, क्योंकि यहाँ पे दो वर्क हुआ। यदि एक वर्क होगा तो कह सकते हो कि वहाँ पे प्रोसेस एनर्जी स्टोर हुआ है, लेकिन यदि दो वर्क हुआ है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मतलब प्रोसेस एनर्जी प्लस प्रोसेस एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कह सकते हो आप। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद इट्स स्पीड। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा जो होता है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद इट्स स्पीड। यदि किसी ऑब्जेक्ट में की स्पीड को बढ़ा दिया जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी कहेंगे, गतिज ऊर्जा कहेंगे। तो वही गतिज ऊर्जा क्या करेगा, प्रोसेस एनर्जी में कन्वर्ट होके वो दूसरा काम करेगा। गॉट इट। हाउ मच एनर्जी इज प्रोसेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। बाय डिफिनेशन वी से दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ a body moving with a certain velocity is equal to the work done on it to make or acquire that velocity। इसमें भी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी में भी एक वेलोसिटी, वेग तो रहती ही है, वो एक्वायर करता है वेलोसिटी, फिर उसके बाद काइनेटिक गतिज ऊर्जा में वेलोसिटी भी है साथ में। लेट अस नो एक्सप्रेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट in the form of an equation. Consider an object of mass m moving with a uniform velocity u. Let it know be displaced through a distance s when a constant force F acts on it in the direction of its displacement. From the work done, W is Fs. The work done on the object will cause a change in its velocity. Let its velocity change from u to v. Let a be acceleration produced. We studied three equations of motion. Yes. The relation connecting the initial velocity u and the final velocity v of an object moving with a uniform acceleration a and the displacement s is v square minus u square equal to 2as। इसको पहले पढ़ चुके हैं मोशन चैप्टर में। गॉट इट। दिस गिव्स s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2a। फ्रॉम सेक्शन 9.4 वी नो f इक्वल टू एम ए। यहाँ पे स्मॉल ए और स्मॉल एम और स्मॉल ए का मल्टीपल होगा, फोर्स इक्वल टू एम ए। दस यूजिंग इक्वेशन 10.2 एंड 10.1 वी कैन राइट द वर्क डन बाय द फोर्स एफ एज W इक्वल टू एम ए इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a और W इक्वल टू 1/2m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर in bracket. Okay, if the object is starting from its stationary position that is u equal to 0 then W बराबर 1/2 mv square. It is clear that the work done is equal to the change in the kinetic energy of an object. If u equal to 0 the work done will be 1/2 mv square. Thus,
द काइनेटिक एनर्जी possessed by an object of mass m and moving with a uniform velocity v is ek equal to 1/2 mv square. Example: an object of mass 15 kg is moving with a uniform velocity of 4 meter per second. What is the kinetic energy possessed by the object? Solution: mass of the object m equal to 15 kg, velocity of the object v equal to 4 meter per second. From equation 10.5, ek equal to 1/2 mv square बराबर 1/2 इंटू 15 kg इंटू 4 मीटर पर सेकेंड इंटू 4 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 120 जूल. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 120 जूल. गॉट इट. नेक्स्ट एग्जाम्पल 10.4. What is the work to be done to increase the velocity of a car from 30 km per hour to 60 km per hour if the mass of the car is 1500 kg? Solution: mass of the car is m equal to 1500 kg. Initial velocity of u is 30 km per hour. So 30 into 1000 meter by 60 into 60 s. यहाँ पे किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया गया है और आवर को सेकंड में चेंज कर दिया गया है. ठीक, तो 30 इंटू 1000 मीटर हो गया और 60 इंटू 60 सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीपल कर दिया गया है. गॉट इट. तो 25/3 मीटर पर सेकेंड हो गया. सिमिलरली द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार v इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर बराबर 50/3 मीटर पर सेकेंड. देयरफॉर द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार EKI बराबर 1/2 mu स्क्वायर बराबर 1/2 इंटू 1500 kg इंटू 25/3 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर बराबर 1,56,250/3 joule. The final kinetic energy of the car EKF equal to 1/2 into 1500 kg into 50/3 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर बराबर 6,25,000/3 जूल. Thus the work done equal to change in kinetic energy equal to EKF minus EKI बराबर 1,56,250 जूल. Potential energy. No, we will discuss about potential energy. Activity: take a rubber band, hold it one end and pull from the other. The band stretches. Release the band at one of the ends. What happens? The band will tend to regain its original length. Obviously, the band had acquired energy in its stretched position. How did it acquire energy when stretched? यदि हम एक रबर बैंड लेते हैं, उसको खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, फिर उसके बाद उसको यदि छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, तो फिर अपने पोजीशन में आ जाता है. तो यहाँ पे क्या होता है, ये पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करके रखता है. जैसे हम खींचते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ,
यदि छोड़ दिए फिर वो अपने पोजीशन में आ जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट एक्टिविटी, टेक अ स्लिंकी और एज शोन बिलो, आस्क अ फ्रेंड टू होल्ड वन ऑफ इट्स एंड्स, यू होल्ड द अदर एंड and move away from your friends. No, you release the slinky. What happened? How did the slinky acquire energy when stretched? Would the slinky acquire energy when it is compressed? यहाँ पे यदि स्लिंकी आप देखे होंगे कि कहीं कहीं पे स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, तो स्प्रिंग में भी जो है ना पोटेंशियल एनर्जी रहता है। उसको यदि आप स्ट्रेच करोगे, खींचोगे, फिर उसके बाद छोड़ोगे तो अपने पोजीशन पे आ जाएगा। इसे ही हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करके रखना। वो कंप्रेस अपने पोजीशन पे आ जाएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी, टेक अ टॉय कार, wind it using its key, place the car on the ground, did it move, from where did the acquired energy, does the energy acquired depend on the number of windings, how can you test this? एक टॉय जो होता है, बहुत सारे टॉय ऐसे होते हैं, उसमें यदि आप की करोगे तो क्या होता है, एक स्टोर करके रखता है एनर्जी। यदि उसको आप कहीं थोड़ा देर के बाद यदि आप उसको छोड़ दोगे तो वो कार मूव होना शुरू हो जाएगा। तो वहीं पूछा जा रहा है क्या यहाँ पे ये एक्टिविटी जो है पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करके रखा है। तो आइए नेक्स्ट एक्टिविटी है यहाँ पे, लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ सर्टेन हाइट, द ऑब्जेक्ट कैन नो डू वर्क इट बिगेंस टू फॉल व्हेन रिलीज्ड। मान लीजिए कि आप एक सर्टेन हाइट पे चले गए, फिर उसके बाद उसको यदि आप फॉल करते हो, गिराते हो, तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे भी हम पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करके रखे हैं। दिस इम्प्लाई दैट इट हैज़ एक्वायर्ड सम एनर्जी, क्योंकि बॉल नीचे गिर रहा है तो वर्क तो हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी एक एनर्जी जो है एक्वायर्ड हुआ था, मतलब होल्ड किया हुआ था पोटेंशियल एनर्जी। इफ रेज्ड टू ग्रेटर हाइट इट कैन डू मोर वर्क एंड हैंस possess more energy. From where did it get the energy? Think and discuss. Okay. In the above situation, the energy gets stored due to the work done on the object. The energy transferred to an object is stored as a potential energy if it is not used to cause a change in the velocity or speed of the object. You transfer energy when you stretch a rubber band. The energy transferred to the band is its potential energy. You do work while winding the key of a toy car. The energy transferred to a spring inside is stored as a potential energy. The potential energy possessed by the object is the energy present in it by virtue of its position or configuration. पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो स्टोर किया हुआ एनर्जी रहता है। यदि कोई डैम है, उसमें पानी रुका हुआ है, तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे स्टोर है। जैसे ही वो खुलेगा, डैम खुलेगा, वो पानी बाहर आ जाएगा। ऊपर छत पे चढ़ गए, हाथ में बॉल रखे हुए हैं, हाथ में बॉल है तो कहीं ना कहीं वो स्टोर करके
पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, उसको जैसे ही छोड़ेंगे वो नीचे जाएगा। गॉट इट? जैसे रबर बैंड है, उसको खींच लिए बाहर, स्ट्रेच किए, फिर उसके बाद छोड़ दिए, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी एक पोटेंशियल एनर्जी जो है स्टोर किया हुआ है। नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। टेक अ बैम्बू स्टिक एंड मेक अ बो एज शोन इन फिगर 10.6. प्लेस एन एरो मेड ऑफ अ लाइट स्टिक ऑन इट with one end supported by the stretched string. Now stretch the string and release the arrow. Notice the arrow flying off the bow. Notice the change in the shape of the bow. The potential energy stored in the bow due to the change of shape is thus used in the form of kinetic energy in throwing of arrow. आपने धनुष देखा होगा, तो यहाँ पे भी जो है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड रहता है। जैसे ही ये एरो जो है मूव ऑन करेगा, तो ये तो काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा, लेकिन जैसे ही इसको स्ट्रेच करते हैं, ये स्ट्रेच किया हुआ है, स्ट्रेच करके खींचते हैं, स्टोर करते हैं, और उसको फिर ये अपनी पोजीशन में आ जाता है, तो कहीं ना कहीं ये भी जो है क्या कर रखा है, पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करके रखा है। और तीर जो मूव ऑन कर रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी को फॉलो अप कर रहा है। गॉट इट? नो वी विल डिस्कस अबाउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट. An object increases its energy when raised through a height. This is because work is done on it against gravity while it is being raised. The energy present in such an object is the gravitational potential energy. The gravitational potential energy of an object at a point above the ground is defined as the work done in raising it from the ground to that point against gravity. It is easy to arrive at expression for the gravitational potential energy of an object at a height. Here figure 10.7 में बताया गया है. Got it? Consider an object of mass m. Let it be raised through a height h from the ground. A force is required to do this. The minimum force required to raise the object is equal to the weight of the object, mg. The object gains energy equal to the work done on it. Let the work done on the object against gravity be W. That is work done. W equal to force into displacement. Force equal to mg. Displacement is h. तो mg h हो जाएगा वर्क डन। यहाँ पे जो ये ब्लॉक को ऊपर फेंका गया है, तो इसके लिए जितना मास इस ब्लॉक का है और ग्रेविटेशन के अगेंस्ट फेंका गया, तो कहीं ना कहीं इसमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई होगी। लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात कहा जाए तो ऊपर गया फिर ऊपर से नीचे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट निग्लिजिबल हो जाएगा। सिंस वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द mgh and energy equal to the mgh units is gained by the object. This is potential energy EP of the object. EP equal to mgh. यहाँ पे ऊपर में होल्ड किया हुआ था, समझ रहे हो, ऊपर में होल्ड किया हुआ था और ऊपर से नीचे गिराया गया है। ये ब्लॉक जो है एक सर्टेन हाइट पे यहाँ पे होल्ड किया हुआ था
यहाँ से इसको गिराया गया है, समझ रहे हो। मोर टू नो, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट at a height depends on the ground level or the zero level you choose. An object in a given position can have a certain potential energy with respect to one level and different value of potential energy with respect to another level. Okay. It is useful to note that the work done by gravity depends on the difference in vertical height of the initial and final positions of the object and not on the path along which the object is moved. 10.8. So, a case where a block is raised from position A to B by taking two different paths. Let the height AB equal to h. In both the situation, the work done on the object is mgh. Got it? Here is example 10.8. यहाँ पे समझाया गया है. Now we will discuss about are various energy forms interconvertible? Can we convert energy from one फॉर्म टू अनदर फॉर्म? क्या हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? वी फाइंड इन नेचर अ नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. हम बहुत सारे एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. यहाँ पे एक्टिविटी देख लेते हैं. सिट इन स्मॉल ग्रुप्स. Discuss the various ways of energy conversion in nature. Discuss the following questions in your group. How do green plants produce food? कैसे ग्रीन प्लांट फूड को प्रोड्यूस करता है? Where do they get their energy from? ये ग्रीन प्लांट जो है कहाँ से एनर्जी को गेन करता है? Why does the air move from place to place? How are fuels such as coal and petroleum formed? What kinds of energy conversion sustain the water cycle? ये सारी एक्टिविटी है, इसको हम एक एक करके देखते हैं. एक्टिविटी, नेक्स्ट एक्टिविटी भी देख लेते हैं. Many of the human activities and the gadgets we use involve conversion of energy from one form to another. Make a list such activities and gadgets. Identify in each activity gadgets the kind of energy conversion that takes place. Law of conservation of energy. अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे. इन एक्टिविटी 10.13 एंड 10.14 वी लर्नड दैट द फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. व्हाट हैपन्स टू द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ड्यूरिंग और आफ्टर द प्रोसेस? व्हेन एवर एनर्जी गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड द टोटल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड. दिस इज द लॉ ऑफ conservation of energy. According to this law, energy can only be converted from one form to another. It can neither be created nor destroyed. The total energy before and after the transformation remains the same. The law of conservation of energy valid in all situations and for all kinds of transformation. यहाँ पे यह बताया गया है कि एनर्जी को हम न ही क्रिएट करते हैं न ही डिस्ट्रॉय करते हैं. उसे सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा सकता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में और दूसरे फॉर्म से पहले फॉर्म में रूपांतरण ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. कंसीडर अ सिंपल एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं. लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम बी ई मेड ऑफ अ फॉल
freely from a height h. At the start, the potential energy is mgh. जहाँ पे हम होल्ड कर रखे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड कर रखे हैं, वहाँ पे उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा। एंड काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, वहाँ पे उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। व्हाई द काइनेटिक एनर्जी जीरो? इट इज़ जीरो बिकॉज इट्स वेलोसिटी इज जीरो। काइनेटिक एनर्जी इसलिए इसको जीरो होगा क्योंकि उसको हम उस ऑब्जेक्ट को होल्ड कर रखे हैं, वो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा में नहीं है, मोशन में नहीं है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। इसका वेलोसिटी जीरो है इसलिए काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा क्योंकि गति में नहीं है। द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज दस mgh। यहाँ पे टोटल एनर्जी जो है, यदि हम होल्ड करके रखे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो mgh है, जितना मास है और जो ग्रेविटेशन है और जितना हाइट पे है, सिर्फ और सिर्फ इसका टोटल एनर्जी वही है। उस ऑब्जेक्ट का मास क्या है और कितने दूरी पे है हाइट, और ग्रेविटेशन क्या 9.8 या 10। गॉट इट? एज इट फॉल्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही ऊपर से नीचे छोड़ते हैं, गिराते हैं, तो यह पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इफ़ v is the velocity of the object at a given instant, the kinetic energy would be 1/2 mv square। v क्या हो जाएगा, velocity of the object is given, the kinetic energy would be 1/2 mv square हो जाएगा। As the fall of the object continues, the potential energy would decrease while the kinetic energy would increase। जब पोटेंशियल एनर्जी उसका डिक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि जैसे जैसे सरफेस पे आएगा, मतलब धरती पे आएगा, अर्थ पे, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसमें वेलोसिटी भी है, साथ में ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, पॉजिटिव में लग रहा है। When the object is about to reach the ground, h equal to 0। जैसे ही वह ग्राउंड पे, सतह पे, अर्थ पे पहुंचता है तो उसका h क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड v विल बी द हाइएस्ट। वेलोसिटी जो होगा, उसका वेग जो होगा सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि अर्थ पे पहुंचने वाला जस्ट पहुंच गया। Therefore the kinetic energy would be largest and potential energy इज लिस्ट। इसलिए काइनेटिक एनर्जी लार्जेस्ट हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। हाउएवर द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, जब हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को सम करते हैं, ऑफ द ऑब्जेक्ट वुड बी द सेम एट ऑल पॉइंट्स। यदि हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों को यदि ऐड करते हैं तो हर एक जगह पे उस ऑब्जेक्ट का जो एनर्जी होगा एवरी पॉइंट पे सेम ही होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, पोटेंशियल एनर्जी यदि बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी घट रहा है। दैट इज सो, इसलिए हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। दोनों को यदि ऐड करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को, तो दोनों क्या होता है, कांस्टेंट, मतलब एक ही रहता है। और mgh प्लस 1/2 mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का क्या हो जाता है फॉर्मूला, mgh स्मॉल m स्मॉल g स्मॉल h प्लस 1/2 mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, इक्वल टू कांस्टेंट। द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी। जैसा कि हम जानते हैं, यदि हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम करते हैं तो वह किसी भी ऑब्जेक्ट के टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होता है। तो ऐसा हम कह सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी बराबर सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी।
Okay, we find that during the free fall of the object, the decrease in potential energy at any point in its path appears as an equal amount of increase in kinetic energy. यदि पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है तो काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली बढ़ेगा. हेयर द इफेक्ट ऑफ द एयर रेसिस्टेंस ऑन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हैज बीन इग्नोर्ड. इस स्थिति में हम क्या करते हैं, जो रेसिस्टेंस है एयर का उसको इग्नोर करके चलते हैं. हेयर द इफेक्ट ऑफ एयर रेसिस्टेंस, एयर का जो प्रतिरोध है ऑन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हैज बीन इग्नोर्ड. उस वस्तु पर जो रेसिस्टेंस लग रहा है, प्रतिरोध लग रहा है, अवरोध लग रहा है, उसको हम इग्नोर करके चलते हैं. देयर इज दस अ कंटिन्यूअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ पे क्या हुआ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया. गॉट इट. फॉर सिंप्लीफाइंग द कैलकुलेशन टेक द वैल्यू ऑफ g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम जनरली g का वैल्यू जो लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं. वैसे 9.8 होता है लेकिन 10 लेते हैं. गॉट इट. थिंक इट ओवर. What would have happened if nature had not allowed the transformation of energy? There is a view that life could not have been possible without transformation of energy. Do you agree with this? यहाँ पे यह बताया जा रहा है कि यदि नेचर ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी नहीं करता, मतलब एक एनर्जी का फॉर्म एक रूप से दूसरे एनर्जी में, एक रूप से दूसरे रूप में यदि कन्वर्ट नहीं होता तो लाइफ काफ़ी मुश्किल ही हो जाती. नो, वी विल डिस्कस अबाउट रेट ऑफ डूइंग वर्क. डू ऑल ऑफ अस वर्क एट द सेम रेट? डू मशीन्स कंज्यूम और ट्रांसफर एनर्जी एट द सेम रेट? एजेंट्स दैट transfer energy do work different rates. Let us understand this form of the following activity. Consider two children, say A and B. Let us say they weigh the same. Both start climbing up a rope separately. Both reach a height of 8 meters. Let us say A takes 15 seconds while B takes 20 seconds to accomplish the task. What is the work done by each? The work done is the same. However, A has taken less time than B to do the work. Next, who has done more work in a given time, say in 1 second? A stronger person may do certain work in relatively less time. A more powerful vehicle would complete a journey a shorter time than a less powerful one. We talk of the power of machines like motorbikes and motor cars. The speed with which these vehicles change energy or do work is a basis for their classification. Okay. Power measures the speed of work done, that is how fast or slow work is done. Power is defined as the rate of doing work or the rate of transfer of energy. If an agent does a work W in time T, then power is given by power equal to work by time, P equal to W by T. The unit of power is watt in honor of James Watt, 1736 to 1819, having the symbol W. 1 watt is the power of an agent which does work at the rate of 1 joule per second. We can also say that power is 1 W
when the rate of consumption of energy 1 joule per second. 1 watt equal to 1 joule per second or 1 watt equal to 1 joule per second. We express larger rates of energy transfer in kilowatt kW. 1 kilowatt equal to 1000 watts, 1 kW equal to 1000 watt, 1 kW बराबर 1000 joule per second. The power of an agent may vary with time. This means that the agent may be doing work at different rates at different intervals of time. Therefore, the concept of average power is useful. We obtain average power by dividing the total energy consumed by the total time taken. एवरेज पावर निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना एनर्जी टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड किया गया है उसको डिवाइड करते हैं टोटल टाइम से. गॉट इट. एक्टिविटी. टेक अ क्लोज लुक एट द इलेक्ट्रिक मीटर इंस्टॉल्ड इन योर हाउस. ऑब्जर्व इट्स फीचर्स क्लोजली. टेक द रीडिंग of the meter each day at 6:30 am and 6:30 pm. Do this activity for about a week. How many units are consumed during daytime? How many units are used during night? Tabulate your observation. Draw inference from the data. Compare your observation with the details given in monthly electricity bill. One can also estimate the electricity to be consumed by a specific appliance by tabulating their known wattage and hours of operation. तो यहाँ पे यही बताया गया है कि आप डेली 6:30 AM से 6:30 PM तक जो मीटर में रीडिंग घर में जो होता है उसको आप नोट कीजिए. फिर उसके बाद डे का कीजिए पहले, फिर उसके बाद नाइट का कीजिए. और ये कंटिन्यूटी 1 मंथ तक ऑब्जर्व कीजिए. फिर उसके बाद जो आपको बिल दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से तो उसको आप मैच कीजिए. और उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि क्या इसमें सही है क्या गलत है. वहाँ पे कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है. इस चीज़ को यहाँ पे एक्टिविटी के माध्यम से बताया गया है. नो वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट यू हैव लर्नड. फर्स्ट, वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स. द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल. 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर. नेक्स्ट, work done on an object by a force would be 0 if the displacement of the object is 0. Yes. Next, an object having capability to do work is said to possess energy. Energy has the same unit as that of work. Okay. An object in motion possesses what is known as the kinetic energy of the object. An object of mass m moving with velocity v has a kinetic energy of 1/2 mv square. The energy possessed by a body due to its change in position or shape is called the potential energy. Okay. The gravitational potential energy of an object of mass m raised through a height h from the earth's surface is given by mgh. Okay. According to the law of conservation of energy, energy can only be transformed from one form to another. It can neither be created nor destroyed. The total energy before and after the transformation always remains constant. Okay. Energy exists in nature in several forms such as kinetic energy, potential energy, heat energy, chemical energy, etc. The sum of the kinetic energy and potential energy of an object is called mechanical energy. Okay.
power is defined as the rate of doing work. The SI unit of power is watt. 1 watt equal to 1 joule per second. So here is my end of my class. So thank you for this watching this video. Hope you have learned many thing, new thing. So thank you so much friends.